Jai Hind दोस्तों, I Nikhil Joshi welcome you all to the second session of the Prelims Mantra series, where we will be talking about the Pareto Foundation approach, which is based on our approach of not getting non-negotiables incorrect. Since my last video about where I talked about the non-negotiables and the questions around which you cannot get them wrong, I felt it that idea quite a bit resonated with most of the candidates who actually watched that video, and many of the people via comments, via the personal chats, or via the channel responses actually communicated to us on how relevant and how applicable they thought it would be. And to ensure that actually that approach worked for me quite a bit, since I have cleared 4 civil services prelims and 3 forest prelims, including those 4 civil services prelims one. And every time I was at the exact scores where I should be. I wasn't at the range where I was getting 130 or 140 plus, because I felt scoring 130 140 plus would require a bit of more challenge, and उतना जरूरत भी नहीं है. जरूरत आपको बस फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करने के लिए की है, और जरूरत आपको बस ऐसे की है कि आप जस्ट कट ऑफ से पीछे ना हो. यू शुड नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस. एंड मैंने हमेशा से ही वो स्वीट स्पॉट ऑफ मार्क्स अराउंड 110 पाने की कोशिश करी है, एंड आई गॉट दैट टू. To prove that, I actually have attached 2 screenshots of my scorecard. In 2024, I scored around 111.34 marks, and similarly in 2022 also I scored 110 around something marks. So, and even in 2025 I was getting around 110 to 115 marks. So to sum it up, the approach actually ensures that you are scoring a minimum threshold marks which are sufficient to get you right prelims and right mains. And trust me, if you are like spending too much time on mains, then some way or the other way you are scoring the higher marks, and your chances of clearing mains increases. However, if you do the same in case of prelims, you are doing that at the expense of not clearing mains, at the expense of some time which you can actually utilize to score mains, to maximize your marks in mains, rather than like not uh, rather than like clear prelims with a huge tremendous margin of 130 140. I'm not saying it's wrong or it should not be done, but I felt it's not efficient use of resources. अगर आपके पास में एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और उन्हीं रिसोर्सेस के सहारे अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है, तो टाइम इज अ रिसोर्स जो सबके पास में सेम है, आपके पास में, मेरे पास में, सबके पास में. तो उस केस में हमें उस रिसोर्स को ऐसे तरीके से मैक्सिमाइज करना है कि हमारा सिलेक्शन हो. मैंने ये देखा कि प्रीलिम्स के में अगर आप एक एक्सपेंस से ज्यादा मार्क्स के लिए ट्राई करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग नहीं लाते हैं. जैसे देयर इज दिस कॉलीग ऑफ माइन हु विल बी कमिंग अप विद द his prelims approach in the next video. He used to score 130 140 marks. However, which both of us actually felt that it may have come at the expense of his mains preparation. And on the contrary, the another friend of ours, the Naman, who is co-founder in Nurturing for Foundation, he actually could not score forest in any of the times, but he always scored prelims, and whenever he cleared prelims, he cleared mains. So his approach of actually balancing prelims and mains was a superior approach than scoring 140 in the prelims. So I hope my approach, whereby I'm not getting the non-negotiables incorrect, actually will land you to this soft spot range of 110 plus minus 5. So this is perfect score, whereby actually you are not only clearing the civil services prelims, but also civil services, but but also prelims for forest services as well. And thereby you are justifiably doing both prelims preparation as well as the mains preparation. And to talk further about the prelims approach, the prelims can be decoded into 4 aspects. Firstly, it's about the non-negotiables, which I talked about and which I will talk about more in detail in this lecture, in this session. Second would be, we will have to work to get these questions correct.
I'll call them boosters because they require a bit of more detailed understanding, a more of detailed focus, and also they are not present in the conventional sources. You need to walk a bit more for them. Next approach would be of random is not so random. These are the unconventional hidden sources which my friend would talk about. And next is, in addition to all of this, you need to talk about the logic and the mindset of the examiner, which would be done by the Skeletokey. So overall, a prelims would require to have a skeleton based on whereby you are getting non-negotiables, which will work as a foundation for your entire prelims preparation. I'll be talking about this foundation in this lecture, in this session. Next would be the enrichment. Enrichment are the boosters which we would talk about in the next session, whereby these things would add enrichment to your foundation, and also they would ensure that you are actually getting those extra bit of tricky questions, difficult questions correct. And the shift would be there between your marks of, let's say, 100 to the 105, 106, or the, let's say, 95 to the 105, but they cannot come at the expense of the foundation. And next is random is not so random, the unconventional, the hidden areas. Let's say few years ago there was this question from the KitKat rappers, how people across the telegram, across the online forums, or even the coaching centers said that अरे वो तो KitKat के फाउंडेशन से, KitKat के रैपर से क्वेश्चन आया है. बट KitKat का रैपर भी तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लेता ही होगा, कहीं ना कहीं से कंटेंट लेता ही होगा. तो दैट एक्चुअली केम फ्रॉम अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाला डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाला एक डॉक्यूमेंट कि जहां से देयर वर अदर साइट्स also copied. So my friend actually identified that pattern, and he has a unique and very intriguing list with him for the unique resources apart from the enrichment and non-negotiables to arrive at certain areas, certain themes, certain topics whereby we can actually maximize our score. Topics, questions which would seem to be very random for the others would have some way or the other understanding for us, because फिर उसमें से हम एक या फिर दो जो ऑप्शन है वो इलिमिनेट कर पाएंगे. And next is game of mindset. So even after knowing all of the knowledge and after knowing everything, you need to apply your logic, understand the examiner's mindset, and also test certain statements on the basis of your background knowledge and on the basis of the language. So ये जो testing है, it comes under the Skeletokey approach, it comes under the mindset approach, whereby we would be using all of the knowledge which we have actually accumulated, gained in the foundation, in the enrichment, and in the random areas to actually apply here, so that we can actually get more and more answers correct. To talk about the non-negotiables and the boosters, which are things we would be getting to actually boost our scores. The non-negotiables are those we cannot get them wrong. Getting them wrong means you are getting behind the cutoff that we have actually established in the last session. And boosters are those which we are preparing to actually ensure that we are getting them correct. Areas around the inscriptions, areas around the coins, areas around the, let's say, the national park protected area, science and tech, ISRO, and other missions, they come under booster areas, whereby we are actually preparing a differential focus. We are having a differential focus on them to actually get them correct. However, non-negotiables, I'll be talking them in the future part in this particular session itself, and will give you an actual list of areas. They should form the skeleton of your preparation. They should form the foundation of your preparation. And there would be some inconsequences. What I mean by inconsequences, they cannot jump your score from one area to the other. Say, let's say if your
if the cutoff is 88 and if you are getting in the range of 80 to 86, they cannot make you jump from 80 to 86 to 90 to 94. दे विल ओनली एंश्योर दैट कि वेदर तुम्हें 80 मिल रहा है या फिर तुम्हें 82 मिल रहा है. सिमिलर, आई मीन व्हाट आई मीन टू से, दे आर जस्ट actually changing your score here or there a bit and shifting your score by 1 or 2 marks, but they are inconsequential in terms of result that you are getting. If the cutoff is 88, your score will vary between 80 to 86 by these inconsequentials. Similarly, if you are already clearing the forest cutoff and getting, let's say, 110 plus like I used to get, then whether you are getting 110 or whether you are getting 116, when the forest cutoff itself is 101, then that will be decided by these inconsequentials. Inconsequentials would be like the question around the cocoa production, which state, which area has the highest cocoa production. There was this another question in the science and tech about some areas that would also be inconsequential, because that is some random fact, this is some random area which no one would be able to do unless and until it's of their interest. मतलब let me rephrase it once again. कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जिन्हें एक्चुअली में तुम्हारे लिए ही बनाया जाता है. There is this friend of mine, the one of the question about some temple was actually asked from the place where he used to live. Similarly, there was this question on beach in 2020, in 2017, I think. One of my friend actually had his Naniyal. I mean, his mother was from that place. Similarly, there was this another question whereby that question was made for me because that area, that understanding or that fact, particular fact itself was very obscure, and just because I read it, by chance I got that question correct. So these are the inconsequentials. Some way or the other way, 5, 6, 10 such questions would be same for like everyone, but questions would be different, but the level of those questions would be same for each one of us. So rather than like focusing, what people do is people run behind those inconsequentials a lot. If there was this mission on the space, then people would be cramming 100, 60, 70 such missions. If they asked about a species, about a protected area, then they would cram all of it. If they particularly ask about a particular list, about a particular inscription, about a particular historical place, then they would be cramming all of it. Doing such things, I won't say it doesn't help, but it should not come at the expense of non-negotiables or the boosters, because the non-negotiables actually form a foundation and they have a standard and limited text as a source. In inconsequentials or in random places, one thing is that they do not have a one single standard source. हमारे पास पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज स्टैंडर्ड सोर्स. उसके अलावा इफ लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, there is a 99%, 95% chance that it will be reflected from the Lakshmikant. Similarly, if there is a history question from the modern, there is a good chance that you should be able to solve it from the modern history. Similar is the case with physical geography. If there is a question from physical geography, you should be able to solve it from the NCERT geography. So the standard limited source, limited text makes it a foundation in a way that you can actually decide its contours कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में तो इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर का क्वेश्चन पूछेगा तो देख लेंगे, इसी नॉलेज से यूज कर लेंगे, इसी नॉलेज से सॉल्व कर लेंगे, या तो फिर हम लॉजिक यूज करेंगे, हम रैंडम फैक्ट जो अभी हम लोग रट रहे हैं हम उनसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. मतलब हमारे पास में प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान डी भी है, बट इन एरियाज का सिंस दी कॉन्टूर्स आर डिसाइडेड, हम लोगों के पास में करेक्ट करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सिमिलरली दे अपीयर एवरी ईयर.
अब जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट है, वो हर साल आता है। बट वाई प्रोटेक्टेड एरिया, आई एम नॉट सेइंग कि वो नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया स्पीशीज हर साल चेंज होते हैं। इट यूज टू बी द एरिया ऑफ लेट्स से 2013, 14, 15, 16, जब वन ऑफ द फाउंडेशनल एनिमल और एक प्रोटेक्टेड एरिया का क्वेश्चन पक्का ही था। इवन टिल 2019, 20 एज वेल, कि या तो एलिफेंट पूछता था, या तो लायन पूछता था, या तो टाइगर पूछता था। फिर एक कोई प्रोटेक्टेड एरिया पूछेगा, तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते थे। इसका जो पीक आया वो 2020 में आया। सिमिलर इज द केस विथ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2-3 साल से आ ही रही है, बट देयर इट डजंट मीन कि वो आगे भी आएंगे ही, क्योंकि बात क्या है कि पिछले 2-3 साल में वो नहीं थी। देयर वाज नो आईआर इन एनी ऑफ द पेपर्स। सिमिलर इज द केस विथ एग्रीकल्चर एज वेल। एग्रीकल्चर 2020 में बिल्कुल पीक पे था, इन 2021 के बाद में अब तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग को ऐसे एरिया चूज करने, हम लोग ऐसे एरिया पिक करने कि जो हर साल ही, हर बारी आते ही है, जिनके बिना पेपर नहीं बन सकता। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू ensure that we are minimizing the unpredictability, we are minimizing actually the randomness of the paper, and randomness is there, but we are trying to make a way out of it so as to ensure कि हमारा एक स्वीट स्पॉट है, मेरा एक स्वीट स्पॉट है 110 मार्क्स का, मुझे वो लाना ही था। एंड आई एंश्योर्ड कि मैं ये वाले फाउंडेशनल वाले एरियाज तो गलत नहीं करूंगा, मैं इनको बेस बनाऊंगा, फिर इनके ऊपर अब मैं बिल्ड करूंगा कि मुझे क्या चीज करनी है, मुझे क्या चीज बिल्ड करनी है, मुझे क्या चीज का और वैल्यू एडिशन करना है, एनरिचमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे हैव वेरी हाई एक्यूरेसी, पोटेंशियल हाई एक्यूरेसी। बात क्या है कि सिंस द क्वेश्चंस कम फ्रॉम लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड कॉन्टूर्स फॉर इट, तो हमें पता है कि क्या स्टेटमेंट पूछेगा, किन एरिया से पूछेगा, और कैसे ट्विस्ट होंगे, क्या क्या उनमें से नुआंस बाहर आएगा। तो अगर हमें ये पोटेंशियल हाई, तो what all it makes is it all actually adds to the potential high accuracy। हम इन एरियाज में एज हाई एज 90% एक्यूरेसी ला सकते हैं। जैसे फॉर मी, आई हैवंट गॉट एनी क्वेश्चन इनकरेक्ट इन पॉलिटी सिंस 2021, whereby the definition of state was the last question कि जो मैंने गलत किया था। सिमिलरली इकोनॉमी में पिछले 3 साल में मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए हो होंगे मैक्स टू मैक्स, और उनमें से भी 1 साल का क्वेश्चन तो बिल्कुल इट वाज अ मैटर ऑफ कि मैंने ओएमआर गलत भरी, एंड दैट ओनली वन क्वेश्चन। तो अगर हम ये हाई एक्यूरेसी वाली क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर वी बिकम क्वाइट अ बिट कंफर्टेबल। हम ऑलरेडी जो कंपटीशन रहता है, जो एंजाइटी वाला जोन रहता है कि अरे यार मतलब 80 बन रहे, 85 बन रहे, 88 बन रहे, कट ऑफ का डिस्कशन चलता है, बाकी लोगों के साथ में हम डिबेट करते हैं कि रैंडम ऑर्गेनाइजेशन की यूएन हाउस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर समथिंग, यूएन हैबिटेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, कि उनका फंक्शन क्या है, महुआ के अंडर आता है नहीं है। आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन, बहुत डिबेट था उसके अराउंड। तो हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि बात क्या है कि कंफर्टेबल मार्क्स में हम है ही, 2 क्वेश्चन इधर रहता है, 2 क्वेश्चन उधर रहता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बिना चिंता के, बिना किसी एंजाइटी के, हम 1-2 प्रीलिम्स के दिन के बाद से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज इनका ये कि हाई एक्यूरेसी के कारण वो जो एंजाइटी वाला जोन है, वो जो एक डिस्कंफर्ट वाला जोन है, हम उससे ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। एंड इन सबके बाद में एक जो फाउंडेशनल एनालिसिस करती है, उसको यूज करके हम लोग एलिमिनेशन कर सकते हैं रैंडम में और एक्चुअली माइंडसेट वाले क्वेश्चंस में। तो ये जो हमारा पिरामिड है कि एक फाउंडेशन रहना चाहिए, एक एनरिचमेंट रहना चाहिए, फिर कुछ हम रैंडम एरियाज की तैयारी करेंगे कि जो एक कोई बंदा जिसके पास में विजडम है, जो ये चीज बार बार अप्लाई कर चुका है, उसके गाइडेंस से है, या फिर हम खुद के अंडरस्टैंडिंग से, खुद के नॉलेज से, खुद के हन से भी करेंगे। और इन सबको एक एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ में, एक एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग के साथ में, एक लैंग्वेजेस की ट्रिक्स प्ले के साथ में अगर हम लोग पढ़े और हम लोग इनको अप्लाई करें, तो फिर इट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स कि हमारा जो
क्वेश्चन सही करने का प्रोपेंसिटी वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो चारों बेसिस है, जो चारों तरीके हैं, जो चारों एक फाउंडेशनल पिलर्स है प्रीलिम्स के, वो हम सब पे हम लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। हमारा एक स्ट्रैटेजी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव है, हम केवल ना ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग एक ग्रेडेड अप्रोच में एनरिचमेंट भी ला रहे हैं, हम लोग ऐसे अनकन्वेंशनल एक रैंडम से एरियाज जो कि एक्चुअली रैंडम नहीं है, उनका कंटेंट भी प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड इन सबको मिला करके एक एक स्केलेटो की बना रहे हैं, एक अप्रोच बना रहे हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन, हम लोग हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, हमारा इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ताकि हम करेक्ट आंसर तक पहुंचे। क्योंकि देखो, तुम्हारे सामने वहां पे आंसर है, ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ही आंसर है। ट्रस्ट में, कोई भी पेपर नहीं है कि जिनमें ई आंसर रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है इसका। उसके बाद में भी दे आर नॉट आस्किंग यू टू राइट कि भाई मतलब क्या है इसका आंसर बताओ, नहीं, सिंपली व्हाट दे आर आस्किंग यू कि ए भरा है तो फिर +2 मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी और मिला है तो -0.66 बनेगा। तो अगर हमें इस करेक्ट आंसर पे अराइव करना है, इस करेक्ट आंसर पे को आइडेंटिफाई करना है, तो फिर ये सारे तरीके हमारे पास में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इन तरीकों को रादर देन आइसोलेशन में सिलोज में हम करें, हम लोगों को उसके साथ में मिल करके अप्लाई करना चाहिए, एंड ये मिल करके हम लोग प्रीलिम्स मंत्रा के थ्रू करेंगे। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉन निगोशिएबल की फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। सो मेनी ऑफ यू टॉक्ड अबाउट कि एक हमें पीओ टॉपिक लिस्ट दो कि कैसे टॉपिक्स रहते हैं, होता क्या है। तो रादर देन कमिंग इन अ सिंगल वीडियो, वी आर प्लानिंग मल्टीपल वीडियोस फॉर इट, एंड फर्स्ट वुड बी ऑफ द नॉन निगोशिएबल्स व्हिच आर फाउंडेशन। मेरे लिए कोई सा भी टॉपिक आइसोलेशन में नहीं था, इट ऑल वाज टुगेदर। सो रादर देन लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ऑन सम रैंडम बेसिस, मैं एक ब्लॉक्स, कुछ ब्लॉक्स में इनको तोड़ा है। कुछ नॉन निगोशिएबल्स, कुछ टॉपिक्स जो नॉन निगोशिएबल है, मैं अभी आज डिस्कस करूंगा उनको। जो कुछ एनरिचमेंट वाले टॉपिक्स है उनको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, सो दैट कि वीडियो की लेंथ एक नॉर्मल नॉर्मल सी रहे। एंड मैंने देखा है कि आप लोग भी बहुत लंबी वीडियो रहती है तो आप देखना बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो क्योंकि मैं भी खुद बहुत लंबी वीडियो क्लिक करना देखना पसंद नहीं करता था, तो आई गेस कि दिस वुड वर्क एंड वी वुड स्टार्ट विद द पॉलिटी। फर्स्ट ब्लॉक इज पॉलिटी वाला ब्लॉक। इसमें हर साल 16 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड बात क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन गलत करने का भी मार्जिन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन हो। इवन दी परोल एंड फरलो वाले क्वेश्चन भी करना आसान था, जो कि डायरेक्टली पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल वो क्वेश्चन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से माइंडसेट के साथ में वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं तो जाके ढूंढता था कि भाई क्वेश्चन पॉलिटी वाले लाओ मेरे को, मैं जाते ही तुरंत वो 15-20 क्वेश्चन सही करूं, 40 नंबर अपने पॉकेट में डालूं, फिर अब बाकी का पेपर करना स्टार्ट करूं। तो इट एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड इट एंश्योर्ड दैट कि आई एम ऑलरेडी वे अबव द रेस्ट ऑफ द कंपटीशन in terms of like clearing prelims, clearing cutoffs, or let's say like qualifying for the forest. So first topic that comes under the polity block is the basic definitions. They talk about the basic definitions of the preamble, कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रैटर्निटी क्या है, सोवरेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो भी प्रियम्बल के हमारे फ्रेजेस है, उन सबके बारे में पूछा जाता है। तो ये लक्ष्मीकांत में भी दिए हुए हैं, 11th की एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो दीज आर लाइक नॉट दी एरियाज की जिनके बारे में बहुत कंसर्न होना चाहिए, बट ये एरियाज आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इक्वल की डेफिनेशन ही नहीं पता तो फिर मतलब फिर तो बहुत दिक्कत है भाई, और ट्रस्ट में बहुत लोगों को नहीं पता होती है। सिमिलर इज द केस विद फेडरलिज्म क्या है, फेडरल क्या है, उसके फीचर्स क्या है, स्टेट क्या है। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक सवाल ही मैंने गलत किया हुआ है, अब मेरे को हमेशा याद रहेगा स्टेट का डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो 2-3 बार पूछ चुका है, रूल ऑफ लॉ पूछ चुका है। तो फिर ये सिंपल टर्म्स जो हम लोग बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, जो लक्ष्मीकांत में भी दिए हैं, जो एनसीईआरटी में भी दिए हैं, इनके डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं पार्लियामेंट से। 2-3 क्वेश्चन तो इससे पक्का ही है। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट के ऑफिसर्स क्या है, मतलब स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है,
पार्लियामेंट में प्रोसीजर कौन सी होती है, मतलब क्वेश्चंस कैसे पास होते हैं, बिल्स कैसे पास होते हैं, अमेंडमेंट कैसे पास होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फिर सेशंस कैसे होते हैं, सेशन का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट होता है, प्रिविलेजेस कैसे है पार्लियामेंट के, फिर पार्लियामेंट की डिसोल्यूशन का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी के सारी बहुत सेंट्रल टॉपिक्स है। 40 टू 42 पेज का लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ ये, एंड प्रोबेबली थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लगता है, पर ये बहुत ही व्हाट व्हाट कैन आई से, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न एरिया। पढ़ने में मुझे भी आलस आता था, तुम्हें भी आलस आता ही होगा, बट मैं आई कॉन्शियसली मेड एफर्ट कि मैंने देखा कि क्वेश्चंस डू अपीयर फ्रॉम दिस एरिया एंड लोग गलत करते हैं। मतलब जैसे इवन की नो कॉन्फिडेंस मोशन में मतलब किन कौन से क्या होना चाहिए, मतलब आर्टिकल 75 आर्टिकल 76 में कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा है या फिर कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये सब बेसिक चीजें भी आप मिस आउट ना करो, ये मेरा इंटेंशन है। राइट्स और डीपीएस पे तो क्वेश्चन है ही कि कौन से राइट्स है, कितने राइट्स है, उनका प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन कैसा है। मतलब जैसे कि एक बार वो राइट टू मैरिज पे पूछ चुका है, राइट टू प्राइवेसी पे पूछ चुका है। तो ये चीजें आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग से, कोई अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो फिर उसके कर्सरी रीडिंग से भी हो ही जाता है। सिमिलरली अमेंडमेंट्स पूछता है कि अमेंडमेंट्स क्या है, रिपरकशंस अराउंड फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट उसका थीम है, वो 3-4 बार पूछ चुका है। सिर्फ सिमिलरली वो रिट्स भी पूछ लेता है। तो ये एक अगेन आफ्टर पार्लियामेंट ये एक ऐसा एरिया है कि जो बहुत हाई यील्डिंग है। सिमिलरली कि डीपीएसपी में कितनी बारी अमेंडमेंट हो चुका है, क्या क्या अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। आई एम श्योर कि अभी मैं पूछूं कि 42nd से कौन से अमेंडमेंट ऐड हुए डीपीएसपी में, 44 से कौन सा हुआ, 86 से कौन सा हुआ, तो फिर काफी सारे लोग आप में से नहीं बता पाएंगे। अब बात क्या है कि सेम क्वेश्चन पूछ चुका है वो 3-4 बारी, अगर पूछने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर आई मीन यू आर इन्वाइटिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल ना। और अभी ट्रबल आई है बट बढ़िया है, पर ये वीडियो देख के, ये सेशन देख के इंश्योर कि आप इन थीम्स को आप गलत नहीं कर रहे हो। उसी के बाद में वो एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर क्या है, उनके बीच का कंपैरिजन क्या है, स्पेशल पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर मैंने इस साल प्रिडिक्ट किया था कि वो आएगा, एंड एक्चुअली में इट अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो दिस इज समथिंग, ये एरिया ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, एंड इनको अगर आप कॉन्शियसली पढ़ोगे, कॉन्शियसली ध्यान दोगे, तो फिर यू विल बी गेटिंग, तुम भी प्रिडिक्ट कर पाओगे, तुम्हारे पास भी रहेगा ऐसा कि यू आर गेटिंग दोज क्वेश्चंस करेक्ट एंड यू आर टेलिंग अदर्स दैट यू आर गेटिंग दोज क्वेश्चंस करेक्ट। एंड अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज जुडिशियरी की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड अगेन उसको इसके साथ में लिंक करते हैं, बट पर्टिकुलरली 124 की जहां पे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन बताता है वो, 129 जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 131 जिसमें कि वो फेडरल इश्यूज के साथ में डील करने वाला है, 142 कंप्लीट जस्टिस, और 145 कि जिसमें वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल्स और इनके अराउंड जुरिडिक्शन, इनके अराउंड तो क्वेश्चंस आता ही है। ट्रस्ट मी, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है और मैंने देखा भी है, एंड यू टू कैन कम अप विद इट। इन आर्टिकल्स के अराउंड बहुत प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आता है। सिमिलरली आई थिंक आर्टिकल 138 भी है कि जिसमें जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। तो ये सब आर्टिकल्स के अराउंड क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, और आपको ये आर्टिकल्स आने ही चाहिए, पता ही होने चाहिए, उनके नुआंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद में कुछ डिटेल्स पूछता है वो, जैसे पार्ट, शेड्यूल्स, लैंग्वेजेस। ये तो अब बहुत कॉमन हो ही चुका है कि पार्ट्स कॉमन, शेड्यूल्स, फिर अगेन राइट्स है, कुछ डीपीएसपी है, फिर डीपीएसपी है या फिर वो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 10 11 12 ही है ना, तो फिर एक बार रट लो उनको, रटने से भी ज्यादा एक बार देख लो कि मुझे पता है कि ये कीवर्ड्स है उनमें से। अब उसमें से क्वेश्चन आएगा तो फिर यू शुड
बी एबल टू सॉल्व इट एंड सॉल्व इट करेक्टली। तो ये तो पूछता ही है। फिर अमेंडमेंट पूछ रहा है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट उसका थीम है, 42nd थीम है, 44th थीम है। फिर लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट पूछता है, वो 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। तो इन अमेंडमेंट्स के अराउंड अगर मतलब आप प्लेफुली देखोगे, एक बार बैठ के खोल के रखना नहीं है, पर कॉन्शियसली माइंड में देखो कि यार देखो कि 31 ही किससे ऐड हुआ है, 32 में अमेंडमेंट लाए हैं क्या वो लोग, 31 बी कहां से आता है, 31 सी कौन से वाले से आता है, 13 कब अमेंडमेंट हुआ है, 13 क्लॉज बी क्या है, 360 क्लॉज 3 क्या है। तो ये सब माइन्यूट न्यूआंसेस अगर आपको पता होंगे तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि ये एरिया आपके लिए केक वॉक बनेगा। एंड उसके बाद में नेक्स्ट इज लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछता है वो कि कौन से मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और कौन से जो है वो अपने तुम्हारे लेजिस्लेचर के पास है। तो मैंडेटरी वाले यू शुड नो कि एक्चुअल में विमेन्स के पास में चेयरपर्सन में भी रिजर्वेशन है या फिर केवल मेंबरशिप में ही रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए केवल चेयरपर्सन में ही है या फिर जो तुम्हारे मेंबर्स में ही है, डायरेक्ट इलेक्शन केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही होता है या फिर सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी होता है। ये छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस बट डिटेल क्वेश्चंस, ये आपको पता होने चाहिए। तो पढ़ाई ऐसे करो कि इन क्वेश्चन, ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ये कभी ना कभी पीवाईक्यू में आ चुके, तो ये स्टेटमेंट को आपको गलत नहीं करना है। एंड सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडीज का हर एक आध क्वेश्चन आता है और उसमें भी यू व्हाट यू कैन मेक इज यू कैन मेक टेबल्स एंड एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट। तो ये इतना डिफिकल्ट एरिया नहीं है, बट ये डिटेल वाला एरिया प्रिपेयर अप इन अ बिट, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल, 10 शेड्यूल इनके अराउंड भी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आ भी रहा है, मतलब 3-4 साल में। उसके बाद में है इकोनॉमी वाला एरिया। ये एरिया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लाइक पॉलिटी। ये वाले एरिया में भी आपके पास में बहुत हाई चांस है कि आप बहुत ही कम क्वेश्चंस गलत करो। इसके अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो 2-3 क्वेश्चन इधर, 2-3 क्वेश्चन इधर, डिपेंडिंग अपॉन पेपर वैरी करता है। पर इनमें आपके पास में एक या दो क्वेश्चन गलत करने का ही स्कोप है, उससे ज्यादा गलत करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि काफी सारे क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आते हैं। अगर आपको बस डिटेल्स भी पता है, इटिमोलॉजी से आप निकाल भी सकते हो, तो फिर आप ये बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। फर्स्ट एरिया जिसमें बेसिक्स है कि की डेफिनेशंस पूछता है वो, फिर उसके बाद में स्टॉक क्या रहता है, वेरिएबल क्या रहता है, फ्लो क्या रहता है, वो सब चीजें पूछता है वो। फिर उसके बाद में जैसे बेसिक डेफिनेशन में आईसीओ और डेफिनेशन वो 2 बार पूछ चुका है। सेक्टर्स कैसे वैरी करते हैं, सेक्टर्स कैसे होते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, उनमें कौन सी एक्टिविटीज आती है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं आती। आई होप मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सब आपको सब आते ही होंगे, पर वहां पे गलत करने का स्कोप नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, लोग ये क्वेश्चन गलत करते हैं, मैं मिला हूं, मुझे पता है कि कौन गलत कर रहा है, और बहुत सारे तो आप में से भी लोग होंगे वो। सिमिलरली अभी पिछले कुछ साल से डिमांड सप्लाई पे पूछ रहा है वो, पहले मतलब बिफोर 2022 नहीं आता था वो, पर अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई वो पूछ रहा है, तो फिर ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज प्रोबेबली दी वन ऑफ द फेवरेट एरिया के, जिनसे क्वेश्चन जिसके बिना पेपर बने पॉसिबल ही नहीं है। होती क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कैसे होता है मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट कौन से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन से है, G6 क्या रहता है, टी बिल्स क्या है, वो सब आपको पता है। इसी के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली इनका इन्फ्लेशन के साथ में रिलेशन, एंड पर्टिकुलरली कि हाउ इन्फ्लेशन प्लेज अ रोल इन डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इन्फ्लेशन का रोल ऑन अदर थिंग्स। तो इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड इन्फ्लेशन एज अ टॉपिक इटसेल्फ, तो ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेबल है। उसके बाद में अभी रिसेंट टाइम्स में ये बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड का और बॉन्ड यील्ड का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। तो बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का जो रिलेशनशिप है, ये ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं खुद कितने लोगों को समझा चुका हूं, मुझे पता है कि ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक बार आप समझ लेंगे, एक यूट्यूब में वीडियो देखो, उससे आपको क्लियर होगा कि क्या रिलेशनशिप है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच में, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लोगे बहुत सारी चीजें।
उसके बाद में जो बहुत प्रोबेबल बहुत सेंट्रल एरिया है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें बैंक वर्सेस एनबीएफसी, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दैट आरबीआई एक्ट है, पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस, हर बारी पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी कर लो, ये एरिया बहुत प्रोबेबल है। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर उसके बाद में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ये भी बहुत ही प्रोबेबल एरिया है एंड ये आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क क्या रहता है, क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, हाउ हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज डेल्ट विद, बैलेंस ऑफ पेमेंट को फॉरेक्स रिजर्व के साथ में क्या रिलेशनशिप रहता है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, फिर उसके बाद में एफडीआई क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसमें किसमें एफडीआई अलाउड है। हर साल एक क्वेश्चन एफडीआई पे आता है। सिमिलरली एफआईआई की फ्लाइट है, एफआई की फ्लाइट पे इम्पैक्ट क्या है, नीर क्या है, रीर क्या है, रुपी एक्सचेंज का इन सब पे इम्पैक्ट क्या है। तो मोर ऑफन देन नॉट ये क्वेश्चन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं एंड इन क्वेश्चन को आप समझने के लिए आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो रादर देन गोइंग फॉर अ सिंगल रैंडम बुक, मेक अ जॉट मेक अ नोट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आर बीइंग आस्क्ड, और मैंने यहाँ पे अच्छा सा लिस्ट दिया है, तो मेक अ नोट ऑफ इट एंड देन सर्च ऑन यूट्यूब और सर्च ऑन इंटरनेट और आस्क चैट जीपीटी टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो होंगे ना, तो फिर आप डिटेल्स के लिए आप कोई सा भी सोर्स उठाओ एंड देन यू कैन एक्चुअली कंप्लीट इट। इसके बाद में वी आर ट्राइंग टू कम अप विथ एक्चुअली अ कोर्स कि जिसमें हम लोग ये जो हाई यील्डिंग एरियाज है इनको हम लोग कहीं से पढ़ा पाए, कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बने, और बात और उसके बाद ही आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज करने का मौका बचे तो वो भी हम लोग करवा दें। तो actually we are in a plan to do it and see, check our channels continuously or be in touch with us ki we within 10-15 days we may come up with the same. नेक्स्ट इज बजट। बजट में भी कंपोनेंट्स क्या है, कि मतलब जैसे करंट बजट वर्सेस कैपिटल बजट, विच में डिफरेंशिएशन क्या रहता है, टर्मिनोलॉजी क्या रहती है, इनके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं एंड थोड़े कुछ क्वेश्चंस करंट जो रीसेंट करंट टॉपिक्स है उनके अराउंड बनते हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस के लिए भी वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ सॉल्यूशन इन आवर कोर्स की वी शुड गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अराउंड स्टैटिक थीम्स की, यहां से लिंकेज होता है एंड यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर दोज थिंग्स फ्रॉम इट। मूविंग forward to the geography block. Geography block comes in two ways. First is they ask about processes and concepts. इनको गलत करना नॉन निगोशिएबल है, मतलब इनको इनको सही करना नॉन निगोशिएबल है, इनको आप गलत नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चंस है वो 6 से 8 आते हैं, इनको इन वाले एरियाज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो डिटेल्स पे बेस्ड आते हैं, जो मैपिंग पे बेस्ड आते हैं कि रिवर्स के ओरिजिन कहाँ पे है। Then they ask you to match about the peaks, rivers and other mapping areas, lakes. तो उन क्वेश्चंस के अराउंड, उन एरियाज के अराउंड हमको सेलेक्टिवली वर्क करना है एंड वी शुड ट्राई टू गेट देम मैक्सिमम करेक्ट। यहाँ पे मैं उनको नॉन निगोशिएबल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कितनी सारी लेक्स है दुनिया में, इक्वेटर पे पता नहीं मुझे कितनी सारी लेक्स होंगी। अब हर लेक को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दुनिया में पता नहीं कितने वॉल्केनो है, क्या हम सारे वॉल्केनोस फिजिबली प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? और अगर हम प्रिपेयर कर भी सकते हैं तो फिर दे शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ की जो इजी एरियाज है, क्योंकि उससे ये रहेगा कि जो मुश्किल था वो सही करने के चक्कर में गए, वो भी सही नहीं किया, और जो आसान था अब वो भी गलत कर बैठे। तो ऐसे नहीं करना है, हमें हमें एक्चुअल में मास को मैक्सिमाइज करना है, हमें वो फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना है, सिविल्स का तो करना ही है, मतलब फॉरेस्ट का भी करना है। तो उस केस में हम लोग इन वाले एरियाज को सेलेक्टिवली पढ़ेंगे, और ये सेलेक्टिवली कहां से पढ़ना है, इट विल बी आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन बूस्टर वाला वीडियो। इन दिस सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन निगोशिएबल क्या है। तो नॉन निगोशिएबल में बेसिक्स है,
फर्स्ट कि आपको लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, टाइम जोन्स कैसे है, मेरिडियंस कैसे काम करती है, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिमिलरली क्लाइमेटोलॉजी बहुत फेवरेट एरिया उसका फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसमें वो टेम्परेचर पूछता है, एसोथर्म्स पूछ लेता है, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप पूछ लेता है, क्लाइमेटिक जोन्स पूछ लेता है, मॉनसून पूछता है, साइक्लोन्स पूछता है। तो ये एरियाज आपको आने ही चाहिए, और एक बार समझ लोगे तो फिर आप सही कर ही लोगे यार हमेशा। सिमिलरली जियोमॉर्फोलॉजी में जियोमॉर्फोलॉजिकल वॉल्केनोस पूछता है, जियोमॉर्फोलॉजी के एसोसिएशन में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पूछता है, शायद 2 बार 3 बार इसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आ ही रहता है, ट्रिकी आता है कि लास्ट ईयर बसाल्टिक प्लेन्स पे क्वेश्चन था शायद। तो फिर उसके बाद में अर्थक्वेक से क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक वेव्स पे क्वेश्चन आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का इन सब के साथ में रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है। तो आई गेट्स मतलब ये वाला एरिया भी एनसीईआरटी से बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कवर होता है, एंड बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका। सिमिलरली ओशनोग्राफी में ओशन वाटर मूवमेंट कौन सी है, पर्टिकुलरली करंट्स पूछता है वो, करंट का इंपैक्ट क्या है, करंट की डायरेक्शन कैसे रहती है, करंट का टेम्परेचर सैलिनिटी के साथ में रिलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में रिलेशन। अब फिजिकल ज्योग्राफी तो यहाँ पे खत्म होता ही है, इसके बाद में बचता है रिसोर्स ज्योग्राफी, जो कि रिसोर्स से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है। बट बात क्या है कि दिस एरिया इज अ कंपैरेटिवली वास्ट एरिया, and I had a approach to deal with it, similar to the details of about the mapping and other area. I'll try to cover this area in the booster series, or will try to get corrected wala series, so you can like check in there. Next is history वाला ब्लॉक। हिस्ट्री में 2 ब्लॉक है, एक तो मॉडर्न वाला की जो सॉल्वेबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेस है, इवन दो कि लास्ट 2-3 साल से तो मॉडर्न का क्वेश्चन है ही नहीं। 2025 में आई थिंक शायद मॉडर्न का केवल 2 क्वेश्चन थे, या फिर 3 क्वेश्चन थे। पर वेटेज ऑफ एंशिएंट मेडिएवल इज इंक्रीजिंग, जिसमें मैं आर्ट को भी जोड़ लूंगा। बट कंपैरेटिवली मॉडर्न, ये जो एंशिएंट मेडिएवल वाला एरिया है ना, ये अनस्टेबल है। व्हाट आई मीन बाय अनस्टेबल, क्योंकि इसमें एक आपको बेस कंटेंट चाहिए, यू शुड हैव कि एक मिनिमम बेसिक कंटेंट है कि इस सोर्स से इस एरिया से क्वेश्चन आता है तो फिर मैं सही कर लूंगा। बट व्हाट हैपेंस, हिस्ट्री इतना, उसके सोर्सेस यूपीएससी भी इतना चेंज कर रहा है कि हर स्टेटमेंट हर क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होता। तो यू नीड टू वर्क ऑन सम एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट कैन कम फ्रॉम कि आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस उठा करके बहुत डिटेल में पढ़ने की जगह कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें उठा सकते हो क्या, जैसे एनसीईआरटी से मैप्स है, जैसे एनसीईआरटी से वो बॉक्सेस है, जैसे जैसे आर्ट्स वाली एक एनसीईआरटी आती है, उसमें फोटो से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए, ये एनरिचमेंट के लिए, आई विल बी कमिंग अप विथ अ सीरीज इन नेक्स्ट फ्यू डेज। यू जस्ट प्रिपेयर बेस्ट एंड रिलाई ऑन माय एनरिचमेंट वाला वीडियो, मेरे पे छोड़ दो ये। आपको एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए और कुछ नहीं करना है। मेरा एनरिचमेंट वाला वीडियो देखो, जहां पे मैं आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल, और जो आपको इंपॉर्टेंट है आप उसी को देखो, उसी को पढ़ो। एंड एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी तो चीज रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल एंशिएंट एंड मेडिवल का ही पेपर है तो फिर आप 200 घंटे वही पढ़ेंगे, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट एक एनरिचमेंट होना चाहिए। तो फिर आई हैव कोलेटेड ऑल दी वैल्यूएबल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एंड जो एक पीवाईक्यू के साथ में एसोसिएटेड टू अ सिंगल प्लेस, और मैं उसके फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पीपल, आई विल बी एक्चुअली अपलोडिंग it for free on this channel, so you can actually watch that video, and like let me know in the comments, like are you excited for the video as well. So be smart in choice with the content, like I was कि मैंने एक selective अपना content बना लिया था, selectively enriched content बना लिया था, and उन्हीं स्मार्ट चॉइस पे बेस्ड आई वुड एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस, आई वुड एलिमिनेट सर्टेन एरियाज की जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर जो ऑप्शन नहीं होगा आंसर में। तो बाय दैट वे इवन मतलब कुछ क्वेश्चन तो मैं सही कर ही लेता था
उससे रादर देन कि मैं सारे सही करूं। और मुझे पता था कि ये एरिया इतना ट्रिकी है, मतलब इनिशियली शुरुआत में आई टुक इट ऑन ईगो, पर इसको ईगो में लेने के चक्कर में आई फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज हैम्परिंग द अदर एरियाज। तो fortunately I got that wisdom way early, and then I did not like miss out on an attempt। but लोग मिस आउट करते हैं, जो अनचेजेबल चीज है उसी को चेस करेंगे, इजी चीज को चेस नहीं करेंगे। इजी चीज ये है, स्टेबल चीज ये है, हम इसको चेस करेंगे। पर्टिकुलरली अब देखो मॉडर्न में भी जो कॉलोनियल लॉज है, मतलब जो 1773 से एक्ट ऑफ 1947 है, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। देख लेना पेपर निकाल करके, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद में कॉलोनियल पॉलिसीज है, अब भले हो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या फिर मिलिट्री पॉलिसीज हो या फिर अदर पॉलिसी हो, उससे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पे और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज पे क्वेश्चन आना बहुत प्रोबेबल है, उसी में कमिटीज है। तो जो एक तो हमारे स्पेक्ट्रम में पीछे की तरफ एक कमिटीज वाली लिस्ट दी है, और कुछ कुछ चैप्टर्स में वो शुरुआत में ही समझा देता है कि ये कमिटीज बनाई थी। अब तो बहुत सारी कोचिंग के रेडीमेड मटेरियल भी आते हैं इन सब के, तो फिर यू कैन लाइक चेक फॉर इट। एंड कमिटीज के साथ में पर्सनैलिटीज, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश पर्सनैलिटीज है या फिर कॉलोनियल इंडिया की पर्सनैलिटीज है, उन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत 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 प्रोबेबल। उसके बाद में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज है, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर राजा राम मोहन रॉय पे था, जो कि आसान क्वेश्चन भी था। फिर उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा है कि पर्सनैलिटीज जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के रिलेटेड है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रही है, उनके अराउंड भी क्वेश्चंस आते हैं। और पर्सनैलिटीज की जो एजुकेशन के साथ में, प्रेस के साथ में, लिटरेचर के साथ में, इन तीनों के साथ में लिंक्ड है, ये वाले से क्वेश्चंस आते हैं। तो बी कॉन्शियस फॉर इट। सिमिलरली इकोनॉमिक पॉलिसीज की इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या रहता था, इंपैक्ट क्या रहा, कौन सी प्रोसेसेस हुई, तो इन सब के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में रिवॉल्ट्स के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। एंड रिवॉल्ट्स एंड पर्टिकुलर मतलब पीजेंट है, कम्युनिस्ट है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, इन सब के अराउंड जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन जस्ट बस लास्ट ईयर नहीं था आई थिंक, पर उससे पहले हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये एरियाज को लोग जनरली निग्लेक्ट करते हैं, बट आई फील कि वेरी हाई स्कोरिंग एंड लो हैंगिंग फ्रूट है। फिर उसके बाद में इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाला एक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे मतलब। तो इसमें अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट है, एनसीएम है, सीडीएम है, क्विट इंडिया है, 1940s वाले इवेंट्स है, पर्टिकुलरली आईएनए जैसे, तो इनके अराउंड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। बट आई फील कि ये एरियाज जनरली गुड कैंडिडेट प्रिपेयर कर ही लेता है, क्योंकि लोग उसको लगता है कि मॉडर्न पढ़ रहे हैं मतलब केवल गांधी स्ट्रगल ही पढ़ रहे हैं। मुझे भी एक्चुअल में फर्स्ट अटेम्प्ट में यही लगता था कि मॉडर्न पढ़ना मतलब गांधी स्ट्रगल ही पढ़ना है। बट पेपर निकाल के जब देखा, तो मैंने देखा क्या है भाई, वो क्वेश्चन तो एजुकेशन पूछ रहा है, प्रेस से पूछ रहा है, ये अपने एक्ट से पूछ रहा है, लॉ से पूछ रहा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से पूछ रहा है, तो वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी रहता है। तो आप ये मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैं आई एम लाइक एम्फेसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन। फिर अगेन एंशिएंट एंड मिडिवल के केस में, लसार्ट के केस में, उसमें भी एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए, एनरिचमेंट वाला सोर्स होना चाहिए। एनरिचमेंट वाला सोर्स अगर आप डिमांड करेंगे, आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर इट, बट लाइक कमेंट एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, आई विल कम विथ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बट आप ये मेरे पे छोड़ दो, यू जस्ट पिक अप वन सोर्स जो कि सफिशिएंट नहीं है एंड प्रिपेयर फॉर इट। उस सोर्स से क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, करूंगी, ये आपको इंश्योर करना है। बाकी उसके अलावा पीवाईक्यू से क्या है, कोई लूसेंट से क्या आता है, नई एनसीईआरटी से क्या है, वो सारी थीम, सारी चीजें मैं ये वाले चीज में कवर करूंगा। जस्ट लाइक कमेंट इन द चैट बॉक्स एक्साइटेड। उसके बाद में एनवायरमेंट में बेसिक्स, अगेन एक एनरिचमेंट है, एक बेसिक्स है। बेसिक्स वाला पार्ट आई एम कवरिंग हियर। उसमें बेसिक्स में डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट पूछता है वो कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, नीश क्या है, बायोम क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उन दो के बीच में इंटरलिंकेजेस क्या है, प्लांट प्लांट रिलेशन क्या है, प्लांट एनिमल रिलेशन क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या रहती है। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, आप देख लो। उसके बाद में क्वेश्चन आता है पोल्यूशन से, पोल्यूटेंट्स कौन से, प्राइमरी क्या, सेकेंडरी क्या है, स्मॉग क्या रहता है, एसिड रेन क्या रहते हैं, डैमेजेस क्या होते हैं, बहुत सिंपल। थर्ड इज लॉ, 5 6 7 लॉज है, उन्हीं लॉज के अराउंडिंग क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हर पक्का से पक्का आता है।
ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको देखनी ही देखनी है। उसके बाद में जो एडवांस्ड एरियाज है उनको हम लोग एनरिचमेंट बूस्टर वाले में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो बात क्या है कि वंस आपके पास में स्केलेटन रेडी है, आपके पास में फाउंडेशन रेडी है, मैंने वो पिरामिड दिखाया था ना, फाउंडेशन अगर आपके पास में रेडी है तो फिर अब ये बाकी अब यू जंप टू एरियाज ऑफ आईआर, जंप टू एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेसिफिक्स ऑफ आर्ट एंड एंशिएंट एंड मेडिवल जो मैं डिस्कस करूंगा, एनवायरमेंट स्पीशीज है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, प्लांट्स एनिमल बिहेवियर है, डिटेल्स है, साइंस एंड टेक वाले टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक वाले टॉपिक्स अगेन दे शुड नॉट टेक यू लाइक मोर देन 2 days। आप कहीं से भी हो, वो बहुत ज्यादा बहुत डिटेल में तो साइंस पूछ नहीं रहा है, मतलब जेई का पेपर है नहीं है कि आपसे फ्री बॉडी डायग्राम बनवाए, आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाए, नहीं, आपसे जनरल साइंस पूछ रहा है ना। तो और बात है कि उसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, तो फिर अभी से मतलब बिल्कुल पागल होने से अच्छा है कि स्केलेटन बनाओ फिर उसके बाद में जंप करो। सिमिलरली स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, अब भाई 1-2 साल उसने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि वापस से क्वेश्चन नहीं नहीं पूछेगा, और वो क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो, और अगर आप 2000 पेज का क्वेश्चन पढ़ भी लोगे तो फिर मेरा ये गारंटी है कि आप सही नहीं कर पाओगे। तो रादर उसके पर पढ़ना है, क्या कहा पढ़ना है, फिर किस एक्सटेंट तक पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे जब हमारा फाउंडेशन तैयार हो। So once skeleton is ready, then jump onto these areas. Skeleton वाला structure I have already given you. To actually help you out, we are coming up with this video series जहां पे अभी मैंने foundation और की बात करी है. One more session will come which will talk about the randomness. Then I'll talk about the booster topics, and then Naman will come up with his approach of understanding the mindset, understanding the logic aspect of the paper via skeleton key. So stay tuned in for it, and please do actually reply in comment section कि आपको क्या चाहिए और आपको ये अप्रोच मेरा कैसा लग रहा है। Till then, you can get back to us at NFU_official। तब तक के लिए जय हिंद, एंड एक्चुअली ऑल द बेस्ट, एंड लेट अस नो इफ यू नीड एनीथिंग।